I, on behalf of Kendriya Vidyalaya, New Bongaigaon, would like to welcome parent, student, teacher, our vice principal sir to this interactive session, especially for class 1. As all of us know that due to COVID-19, all the schools across the world were closed, and our Kendriya Vidyalaya Sangathan is trying its best to impart education so that it will not hamper the learning process. So, first of all, in this interactive session, I want to put some questions for parents. पहले हम parents से question पूछेंगे. पहला क्वेश्चन है हाउ डज योर वार्ड एंजॉय ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग. मतलब आपका बच्चा ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग को कैसे एंजॉय करता है, वह क्या नई चीजें सीख रहा है. तो ये क्वेश्चन आपको जाता है, पेरेंट्स को जाता है. तो कोई बोलना चाहेगा इसमें? रियांशी, रियांशी के पेरेंट्स या तो दर्शिल, रितनिका, कोई अपना व्यू देना चाहेगा इसमें? यस मैम, मैं अपना व्यू देना चाहूंगी. हाँ हाँ हाँ, बताइए मैडम. मैम, बच्चे तो ऑनलाइन क्लास एंजॉय कर रहे हैं और टीचर लोग का भी ज्यादा सपोर्ट मिलता है. और जब ये लोग ज्यादातर एंजॉय जब करते हैं जब मैम लोग या सर लोग क्वेश्चंस वगैरह कुछ कुछ नई चीजें पूछते हैं, तब ये लोग को अच्छा लगता है मैम. अच्छा जी मैम. अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा कि आपका बच्चा क्या एंजॉय करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हम टीचर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? अरिकना, Yeah, अनिकेत. good morning, madam. Good morning. हाँ, गुड मॉर्निंग. हाँ, बोलिए सर. Yeah, my name is Pradeep Brahmachari, madam. हाँ, ओके So सर. regarding the enjoyment of online classes, here I like to share few points. First of all, you see, uh, all these points according to my observation, ma'am, I'm sharing with you. यस 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 So, यस यस, ओके सर. first of all, ma'am, I find that my son, when he can see himself on screen, okay, थैंक्स. yeah, he enjoys a lot. Okay, that actually fascinates him a lot. यस, इट And बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस. yes, ma'am. And you see, whenever I tell him that Arigna, sit properly, then he likes to look at the screen first. Okay, and then he wants to rectify his posture and gesture. हाँ, So that is, यस. I think, due to these online classes, it is possible. And second point that I want to raise, sometimes he likes to make some sort of facial expression also. Want to draw the attention of teachers. I see the teachers ask him most often, "Arigno, क्या हुआ? आज आप क्यों ऐसे mood में हो? क्यों गुस्से में हो?" So that I think he does mostly because of drawing attention of teachers. And third point that I want to add, that he likes to watch videos on animals, videos on different activities that are being shared by the teachers time to time through these online classes. And the last point I want to add that one thing that he likes, that flexibility on schedules. ओके Class सर. flexible class schedules that he likes also. Sometimes he is asked to attend class in the early morning, sometimes in the late morning also. So that also he likes. He enjoys a lot. Thank you, madam. Okay, second question once again. What are the activities that your child misses most in online classes as compared to offline classes in pre-primary school? मतलब आपका बच्चा जो ऑनलाइन क्लास में ऐसी क्या चीजें मिस कर रहा है जो उसने प्री प्राइमरी क्लास जो ऑफलाइन की थी? तो आप में से कौन बोलना चाहेगा? कोई भी अभिभावक जो अपना व्यू शेयर करे? मैं हाँ, ये क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए है बेटा. हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस बारे में कि जो बच्चा अभी घर में मैम ये हो रहा था, क्लास हो रहा है, तो उन लोग का अगर मैम स्कूल में अगर होता ये ऑफलाइन में, तो शायद कुछ ऐसा एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, खेलना और बाकी सारे जो भी क्लास डांस हो, चाहे ये गाने का हो, मैम ये सब शायद उन लोग के होता इसमें ऑफलाइन क्लास में. ऑनलाइन में यही कुछ ये लोग का अभी एक्टिविटी नहीं चल रहा है.
तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम लोग बहुत सारा सीसी एक्टिविटीज है जो हम चला रहे हैं ऑफलाइन, ये ऑनलाइन मोड में, जो आप बच्चे का जी मैम। वीडियो देखना पड़ता है ना, वो सब तो कर रहे हैं। बस ये है कि फेस टू फेस नहीं हो रहा है बस, है ना। हाँ, अच्छा, फेस टू फेस नहीं हो रहा है, और जो भी खेलना कूदना है मैम वो थोड़ा सा ये लोग का ऑफलाइन में थोड़ा सा होता, तो अभी ऑनलाइन में वो कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी कोई और बोलना चाहेगा? परिष्मिता या विष्णु या कृष्णा, कोई भी बच्चे के पेरेंट्स, परी, रिद्धिमान। यस मैम, मैं स्नैक्स की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। ऑफलाइन में मैडम बच्चे जो डायरेक्ट है अपने दोस्त लोग के साथ मिल पाते हैं, खेलते हैं, जिससे उनका शारीरिक डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है। और जो भी है अपना टीचर से जो है डायरेक्टली अपना बातचीत कर पाते हैं, हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन में तो ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाता है मैडम। तो थोड़ा मतलब सिचुएशन के साथ तो थोड़ा ये है, प्रॉब्लम है ही। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंट मेरा बच्चा है फील कर रहा है। बोलता है पापा मेरा स्कूल कब खुलेगा, मैं अपने दोस्त लोग के साथ कब खेलूंगा, वहां साथ में पढ़ूंगा, साथ में मैडम के साथ सामने बातचीत करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। अभी ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछने में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, जिससे मेरी क्वेश्चन को मैम नहीं सुन पाती है। मैडम जो सर आंसर देते हैं उसको मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाता हूँ। ऑफलाइन में ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चों दोस्तों के साथ अच्छे से मतलब कि खेलने साथ पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करता, अकेला बोर हो जाता हूँ। ऐसा मतलब कि मेरा बच्चा फील करता है। ये तो सही बोला आपने, ये तो सही। नथिंग कैन बी कंपेयर्ड विद दैट रियल क्लासरूम। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज योर चाइल्ड फेसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? है ना, क्या परेशानी झेल रहा है ऑनलाइन क्लास में? एक तो आपने बता ही दिया, वो नेटवर्क का है ना, पहले वाले प्रश्न के साथ आपने ज्वाइन कर दिया है। तो इसमें कोई बोलेगा कि क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लास में तो मैडम बच्चा डिफिकल्टी यही फेस कर रहा है। कभी कभी जो मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जो मैम या सर जो कोई बात बोलते हैं तो इसको आवाज क्लियर समझ में नहीं आ पाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि कोई मेरे रिलेटिव लोग का इस बीच में फोन आ जाता है, जिसका उसका आंसर का फोन का जवाब देने में इसको थोड़ा जो मैडम इस बीच में बताती है तो बात को क्लियर सर का मैडम का नहीं सुन पाता है। तो फिर से इसको रिपीट होकर मैडम से सर से उस क्वेश्चन का जो बताती है उसको ये पूछना पड़ता है। थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है मैडम, लेकिन सिचुएशन के अनुसार इसको हम समझाते हैं कि ऐसा ही सिचुएशन है, सिचुएशन के साथ तालमेल करना पड़ेगा। Okay, any other parent who want to give their views? Parent of Adhya, Victor, Keshav, class 1. यस मैम, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं आदित्य शिवम, आद्या के पापा हूँ। और मैं इसके इश्यूज के बारे में, तो जो नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है वही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं, वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के पास ज़्यादा समय बिताते हैं, तो इन्हें मज़ा भी आता है। हालांकि थोड़ा सा सोशल जो एक साथ में एक दूसरे से मिलते हैं उसकी वजह से नहीं हो पाता है पूरा अच्छे तरीके से, तो इसका थोड़ा सा खामियाजा है। पर मजे भी बहुत करते हैं क्योंकि ये घर में होते हैं। they are spending their time with their parents, है ना। बट मम्मी पापा के साथ टाइम पास करना बच्चे को ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू थिंक schools could improve on their online teaching learning process? तो आप क्या सोचते हैं कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हम टीचर ऑनलाइन टीचिंग के लिए? आपके बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं हम टीचर्स? तो कोई बोलना में मतलब हाँ, सुधार मतलब यही करना है मैडम कि कोई बोलेगा? हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, सुधार मतलब यही करना है मैडम कि बच्चों में मतलब कि आपस में मतलब 6 दिन 7 दिन पर जो क्या बोलता है आपस में। हाँ बोलिए सर। हाँ, आपस में। हाँ ओके, उनका शायद कोई नेटवर्क इशू होगा तो एग्जिट कर गए। ओके, कोई और पेरेंट्स जो बोलना चाहेगा, हु कैन स्पीक ऑन दिस क्वेश्चन? जी मैम, मैं बताना चाह रहा था
आगे हेलो बोलिए बोलिए सर। ऋतिकेश, हाँ यश, मैम, रोहन। जो स्कूल स्कूल में जो अभी ये जो ऑनलाइन का अगर आगे बढ़ाएंगे अगले साल भी, तो मैम इसका सुधार यही होना चाहिए कि स्कूल में जो जो टीचर का जो ये है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है मैम, उसको थोड़ा ब्रॉड किया जाए, ताकि टीचर अच्छे से उसको सजेशन। कनेक्टिविटी बढ़िया हो। हाँ और हाँ दूसरा मैम, उसको जो इंटरनेट जो सिस्टम है मैम, जैसे कि वाईफाई का अगर इंस्टॉल इंस्टॉल कर दिया जाए कि नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, इसमें पूरी तरह से नेटवर्क मिले, ताकि बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, जो कि अभी हो रहा था कुछ क्लास में और कुछ टाइम ये में भी। और रूम का जो ये है साउंड प्रूफ, जो थोड़ा सा अगर रूम बना दे मैम, जो बाहर का नॉइस से थोड़ा कम हो, तो इसका बारे में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मैम मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है ऑनलाइन क्लास। हाँ हाँ, आपका सजेशन अच्छा है, हमने नोट डाउन कर लिया। बट आई डोंट थिंक सो कि ये ऑनलाइन क्लास और चलेगा, क्योंकि द सिचुएशन इज कमिंग टू द नॉर्मल एंड व्हेन जी मैम। वी विल गेट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हायर अथॉरिटी देन देयर ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट। लेकिन हमने आपका सजेशन लिख लिया है, आपने बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं ये, हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट और हेल्प फैसिलिटेट दिस ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस? मतलब क्या है, ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, पेरेंट्स कैसे और अच्छा बनाने में हेल्प कर सकते हैं? कैसे हेल्प कर सकते हैं आप अपने बच्चे गुड मॉर्निंग मैम। करे? हाँ तो हाँ हाँ बोलिए गुड सर। मॉर्निंग हाँ मैम। हाँ हेलो। हाँ सर, आई कैन हियर यू। हाँ। यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये कोविड का वजह से जो भी सब्स्टिट्यूट इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शनीय है, और ये सारे विश्व का एक पहला फेस है ताकि कैसे हम लोग इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उसका अंदर में भी हम लोग पढ़ाई कैसे चालू रखें। तो केंद्रीय विद्यालय ने जो भी इनिशिएटिव लिया है, या तो गवर्नमेंट में जो भी इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छे हैं। हम लोग इसको और अच्छे से उसको आगे ले जा पाएंगे। थोड़ा टाइमिंग का वजह से, जैसे स्कूल का भी एक टाइमिंग होता है और हम लोगों का पेरेंट्स का भी कोई काम का एक टाइमिंग होता है, तो मॉर्निंग सेशन में ही अगर इसको और ज्यादा फोकस किया जाए बच्चों का क्लास में, तो हम पेरेंट्स लोग भी उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व हो सकेंगे। बाकी हम लोग को और अच्छा लगा कैसे टीचर्स लोग 1 बाय 1 और वर्ड बाय वर्ड ये पढ़ाने का जो सिस्टम है, तो हमने बहुत पहले हमने खुद भी पढ़े थे, हम भूल गए बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो आप लोगों से सीख लिया ताकि हम लोग भी बच्चों को भी पढ़ा सकता है। पहले हम कितना भी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन हम पढ़ाने में हमको एकदम आते ही नहीं थे, लेकिन अभी आप लोगों से वो तरीका सीख लिया, तो मॉर्निंग सेशन में होने से मेरे लिए अच्छा होता है। और बाकी तो ठीक है, जो भी लिए गए है सराहनीय लिए है ये आप लोगों का कदम। थैंक यू Thank you, मैम। sir. I have noted down your that means suggestion. We will discuss it with our higher authority and we'll try to change the time. Okay, ठीक है। अब बच्चों से क्वेश्चन जाता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस? बच्चों को आंसर देना है, ठीक है? मतलब ऑनलाइन क्लास में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, ये आपको बोलना है। कोई बच्चा बोलेगा? स्वास्तिक, क्वेश्चन एक्टिविटी पसंद है। एक्टिविटी पसंद है। ओके, जब आपका बोलना हो जाए तो म्यूट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? रिगना, अनिकेत और कोई बच्चा? अच्छा, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा लगता है। आपसे क्वेश्चन मुझे एक्टिविटी अच्छा लगता है। एक्टिविटी अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। So students are telling that they like videos, whatever the madam is sharing, question answer session, when they put question to them, ठीक है, and they like all this thing. Now the next question, what is that you look forward to daily during online classes? मतलब बच्चा आप क्या उम्मीद करके डेली क्लास ज्वाइन करते हैं कि आज क्लास में क्या होगा? क्या उम्मीद करते हैं कि आज क्लास में क्या होगा? क्या उम्मीदें हैं आपकी उस ऑनलाइन क्लास में जो आप रोज ज्वाइन करते हैं? कुछ नया सीखने के लिए हम लोग अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। कुछ नया आप मतलब उसी उम्मीद में रहते हैं, ठीक है। और रिदम और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? धृतिमान,
Yes, good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मैम हाँ, बोलिए बेटा। हाँ, क्या हम एक करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ, हाँ, मैम हाँ, बोलो। हाँ, यस, बोलिए। क्या हम लोग करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन में ऑनलाइन क्लासेस में नया नया एक्टिविटीज करवाएंगे, नया नया ड्राइंग करवाएंगे और नया नया स्टोरी सुनाएंगे। अच्छा, ठीक है। आप उसकी उम्र बताए। हाँ, कि मैडम कहानी सुनाएंगी, कब एक्टिविटी करेंगी, उसकी। हाँ, बोलिए बेटा। बोलिए बेटा, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, बोले दीजिए अपना मन से हाँ, ठीक है। चलो चलो चलो, आप बहुत उम्मीदें लेके आती कि आज मैडम क्या एक्टिविटी कराएगी, क्या नया सिखाएगी, क्या कहानी सिखाएगी। इसी उम्मीद से आप फिर रोज ज्वाइन करते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न जाता है बच्चों आपके लिए। व्हाट इज डिफिकल्ट इस ऑनलाइन क्लासेस? मतलब ऑनलाइन क्लासेस में क्या मुश्किलें लगती है आपको? आपके हिसाब से क्या मुश्किलें लगती है? तो अनुष्मिता की कोई बच्चा जो बोलना चाहे, कभी की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, हाँ, मैम हाँ, हाँ, एक एक करके बोलिए। हाँ, प्रॉब्लम से गलती होती है। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए बेटा। मैम हाँ, बोलिए। सब बोलते हैं। अच्छा, जब एक साथ सब बोलते हैं तो आपको तब समझ में नहीं आता है ना, तो ये आपकी थोड़ी परेशानी होती है समझने की। हाँ, हाँ, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैम का कभी कभी कट हो जाता है और जब नेटवर्क खत्म हो जाता है तब। जब नेटवर्क आपका खत्म हो जाता है ना, ठीक है। ये सब परेशानी आपको झेलनी पड़ती है ना ऑनलाइन क्लास। मैम जब फोन आ जाता है क्लास के समय तब। अब जब क्लास में फोन आ जाता है आपके मोबाइल में तब आप परेशानी होती है। अच्छा, ठीक है, तो आपकी परेशानी में लिख ली है। हाँ, ठीक है। अच्छा, हम प्रश्न 4 में पहुंचते हैं। हाउ डू यू गेट हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स और सिबलिंग इन योर ऑनलाइन क्लासेस? मतलब आपके मम्मी पापा या बड़े भाई आपकी हेल्प करते हैं ऑनलाइन क्लास में, जो आप करते हैं रोज? मुझे को समझ नहीं आता आपके मम्मी पापा हेल्प करते हैं ज्वाइन करने में, दीदी भैया हेल्प करते हैं? मम्मी पापा बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, हाँ, तो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन है आप ही के लिए बच्चों। अच्छा, अच्छा बेटा, चलो हम नंबर 5 पूछते हैं, ठीक है। सिंस यू मिस बीइंग विद योर क्लासमेट्स एंड प्लेइंग विद देम, हाउ आर यू कोपिंग विद द सेम एट होम? जब आपका स्कूल रहता है तब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, है ना? तो अभी तो नहीं खेल पाते, तो उसको आप कैसे कोप अप करते हो? गेम्स जो मिस करते हैं, ऐसा क्या दीदी लोग के साथ ज्वाइन करके ज्वाइन गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने घर के दोस्तों के साथ खेलते हैं। अच्छा, घर के आसपास के दोस्तों के साथ आप खेल के अपना वो मतलब जो स्कूल में करते हैं वो एक्टिविटी कोप अप कर देते हैं ना। बहुत अच्छा है। एंड सम ऑफ यू आर एंगेज ड्राइंग। मैं भाई के साथ खेलती हूँ, ड्राइंग करती हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, भैया दीदी के साथ खेलते हैं ना, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ दिन बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो स्कूल जब खुलेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ खेल पाएंगे। अच्छा, छठा क्वेश्चन हम जा रहे हैं।
What are the other online activities that indulge in on your own or with the help of parents or sibling? कुछ अलग एक्टिविटी जो आप अपने दीदी भैया के साथ करते हो, अलावा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप अपने पेरेंट्स या भाई बहनों के हेल्प से कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं? ऑनलाइन एक्टिविटीज क्या करते हैं अपने मम्मी पापा की हेल्प से? ऑनलाइन एक्टिविटीज बतानी बेटा क्या करते भी है अच्छा बनाना ऑनलाइन क्लास करते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं अच्छा ऑनलाइन क्लास तो करते हैं बेटा, उसके अलावा क्या करते हैं ऑनलाइन अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ? अच्छा अच्छा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो कॉलिंग करते हैं। मैम हम लोग पोएम और कहानी लिखते हैं यूट्यूब में। हाँ मोबाइल में ये कहानी वहानी देखते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ कुछ माइक ऑन करो, ऐसे माइक ऑन मत करो, ठीक है? ज्यादा स्क्रीन भी अच्छा है बेटा, so in the limited you will use it in a limited way. Now the 7th question, this is also for the students. What is the best part of online classes that they don't enjoy? मतलब ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या नहीं अच्छा लगता? तो कोई खुशहाल बोलेगा या रितनिका या सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं और इससे समझ में नहीं आता। सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं। अच्छा तो वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब सब मेरे दोस्त एक साथ बोलते हैं। आवाज के लिए तब आवाज नहीं आती है, तब आपको मतलब वो आपको ऑनलाइन क्लास में इतना पसंद नहीं है ना? ठीक है। नाउ द मैम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरा नाम लेते हैं तो सब बच्चे बोल देते हैं। ओह अच्छा नहीं बोल पाता। क्योंकि आंसर सबको अच्छा लगता है, मैडम इतना अच्छी तरह पढ़ाती है कि सबको आंसर आता है ना? तो लगता है कि सब उसे आंसर दे, है ना? वो पसंद नहीं कि तुम्हारी आवाज खो जाती है बीच में। थैंक यू स्टूडेंट। नाउ द क्वेश्चन सेशन फॉर टीचर्स। Teachers, I want to ask, apart from not being able to see all the students of your class face to face, ठीक है, again I am repeating the question. Apart from not being able to see all the students of your class face to face right from the time they have admitted, what is it that bothers you the most in the online teaching and learning process? Any teacher who can share? Question number 1, apart from not being यस मंजू मैम, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं अपने व्यूज शेयर करना चाहती हूँ। यस मैम, पहली तो चीज बीइंग अ टीचर हमारा काम सिर्फ बच्चे को सब्जेक्टिव नॉलेज देना ही नहीं बल्कि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट में सोशल, इमोशनल, फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट भी शामिल होता है। तो ऑनलाइन टीचिंग में कहीं ना कहीं बच्चे सोशली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनका सोशलाइजेशन जो है वो इतने अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो इंडिविजुअली होती है, तो बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में भी पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट नहीं हो सकती। तो एक तो ये चीज है कि सोशली बच्चों का डेवलपमेंट जितना अच्छा वो अगर स्कूल में आए उतना अच्छा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीजें, प्राइमरी टीचिंग तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ही होती है, तो ऑनलाइन में एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन वो इंडिविजुअल एक्टिविटी हो रही है। ग्रुप एक्टिविटीज अगर हम लोग कराते भी है तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि वो ग्रुप एक्टिविटीज बच्चों के साथ अपने घर पर ही करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चा दूसरे बच्चों से नहीं मिल पाता, तो ग्रुप एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है और पीयर लर्निंग नहीं हो पा रही है। बच्चा अपने साथ के हम उम्र के बच्चों के साथ सीखना ज्यादा पसंद करता है और सीखता भी ज्यादा है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में बच्चा एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो ग्रुप एक्टिविटीज कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, इससे बच्चा पीयर लर्निंग बच्चे की नहीं हो पा रही है। तीसरी चीज, जब बच्चा मैम जब स्कूल में आता है
तो हम कुछ उसके अंदर कुछ नई नई हैबिट्स डेवलप कराते हैं। तो जो हैबिट फॉर्मेशन है वो भी बच्चे के अंदर नहीं हो, बच्चा में आते हैं कि आपको स्कूल में आके टीचर्स को विश करना है, गुड मॉर्निंग विश करना है, जाते समय गुड आफ्टरनून विश करना है, उसके बाद लंच से पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, लंच के बाद भी अपने हैंड वॉश करने हैं। तो ये चीजें ऑनलाइन क्लासेस में हम बता तो रहे हैं बच्चे को, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो पा रहा है वो भी हम इंश्योर नहीं कर पा रहे, और शायद वो इतना अच्छे से नहीं हो सकता जितना कि बच्चा जब स्कूल में आए तब हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं मैम जो ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू नहीं हो पा रहा है बच्चों का। थैंक यू मंजू मैम। Yes, yes. Thank you, Sonam madam. In this, I want to add one more thing that with the offline learning, it is easier to ensure कि attendee पूरा he is paying attention or not in the classroom. But in online classes, this one is missing. कि कितना attentive है बच्चा वो हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है? Okay. Now the second question: how are you coping with this above issue? Any teacher? यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है वो इतने अच्छे से चल रहा है। उसके लिए मैं पेरेंट्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम नहीं समझा पा रहे हैं बच्चों को, जैसे कुछ टेक्सचर हमें बताना होता है कि सॉफ्ट हार्ड, ये सब चीजें हम नहीं करा पाते। पर हमारे हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि वो उन्हें फील कराएं कुछ चीजों, क्योंकि हम चीजों को अभी टच नहीं करा सकते, फील नहीं करा सकते, कुछ कंक्रीट चीजों को उनके हाथ में नहीं दे सकते, तो चीजों को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए हम पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं कि वो इन टॉपिक्स को समझाने के लिए, अपने बच्चे को समझाने के लिए वो हमारे बेसिस पे वो उन्हें समझा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा एक टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बड़ा उनका योगदान है पेरेंट्स का। Yes, yes. Yes. थैंक यू पिंकी मैडम, ये आपने ठीक बोला है कि अगर 50% हम टीचर कुछ इम्पार्ट करें एजुकेशन, पेरेंट्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। ओके, यस Yes, I want to include one point here. यस मैडम, यस Yes, I want to include another point here. Sometimes to make the children understand the concept of things, we have to make some self-made videos or show them videos, pictures, etc. from other sources, and we are doing this for a continuous or fruitful teaching learning process. So we are coping in this way also. हाँ, ये आपने ठीक बोला है कि जिन बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम है तो टीचर्स क्या करता है, वीडियो देते हैं या तो कोई मटेरियल टीचिंग लर्निंग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर योर सजेशन टू द पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1? व्हाट सजेशन यू कैन गिव? क्या आप सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को? कोई टीचर? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। I want to give some suggestion to the parents as well as the students here. यस सर। I think first and foremost, the first duty of parent is to give a good surrounding to the student, okay, like a classroom surrounding, and like make them ready with their breakfast, with their formal dress, and keep them ready to, as they are going to school, they should feel develop the same feeling within the student, so that they cannot feel deprived like they are not going to school. And second thing I want to include, whenever they are trying to answer something or trying to talk to the student or actually talk to the other student also or teachers, they should use the golden words like excuse me, I'm sorry, may I go for something, or may I bring that, thank you, or could you please repeat sir or ma'am. Okay, these are the words that the student must be developed. Okay, so these are of the duty of, I think, parents as well as the teachers also, our duty also. Yes. And another point I should include is physical activity. You have to ensure physical activity within the student. Mental development it's okay. The online class is going on. They are reading, they are learning, everything is going on. But we are not having morning assembly, yoga period, games period that regularly we do in our school. So it is the duty of parents. They should ensure that some physical activity daily should be there in their timetable. Okay, like jogging, walking, or any outdoor games, gardening, or any other simple homework. They should engage the student in physical activity.
So it will be good for their physical development. Yes. That's Thank from you. my Yes. side. Thank you, Madam. Yes. Yes. Another important point I want to add on, that parents should help the children to inculcate moral values like respecting their elders, good behavior, and have patience for their turn. This will help them for near future also. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Moreover, I can say that physical activities. Yes, Manju ma'am. Yes, Papya ma'am. I want to add one point. What I feel that physically, I feel that physically present is very necessary. When we see the means face-to-face teaching, when we see our students and student will see ourselves, then we can provide every material, each and everything, every activities with them from very near, and when they touch us and we also touch them, means they can get one homely environment. Actually, the beginners, class 1 students, they are coming from their home, they need motherly behaved and they need their home environment. So in the beginning, if we give them the home environment and homely affairs, if we love them and we ask their background sometimes, many students, they cannot pay their attention. They want to play, they want to go to see their mom. So in that case, if we nurture them, if we talk with them very politely and loving way, then they will be very fruitful to cope up their studies, and they can understand, then they means come to know our names, our behaviors, our attitudes, all these things. So physical means present is very necessary. So in this online teaching, just we can means it is easy to visualize and audio also, but face-to-face teaching, that is physical means present, this is necessary. I think it is my opinion. Okay, thank you. Yes, that is the real thing, that we can't compare online class with offline class. Okay, now the fourth question: what assistance do you think from the school or RO will be great help in the online teaching and learning of class 1 student? What additional assistance you think from the school or RO will be a great help? Teachers? Any teacher? Yes, madam. Yes, good morning, everyone present in this online interaction session. We are doing online classes in the school and in the home also before that, but now at present we are doing from the school through our own internet in our handset. But sometimes it is a great issue of network. If there is a Wi-Fi system in the Vidyalaya, then I think this issue will be solved. Okay. But in the middle time, mid time, and there is your voice was not coming. Okay, I think if there is a Wi-Fi system, yes, then I think problem will be solved. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Any other suggestion? Any other help you expect from the RO or from school? One important issue is also there. Due to pandemic situation, some parents' economic condition is worse. They are unable to pay the fees of for their works also. So those children feel some guilty, and they do not want to take online classes. So if such students fees can authority exemption is there, then I think that is a great help to those students.
Okay, ma'am. But no It's doubt, better. teacher will verify the genuineness before Yes. this. First, we will have to do some case study. Then, Yes. yeah, then we After will that, discuss will it be with the passed to the higher higher authority. authority. Okay. Okay, thank you, madam. As we have come to the end of the interaction session, now I would like to request our principal sir to share his opinion about this online classes that is going on for all the classes, especially for class 1 for the session 2021. Sir, please. सभी को नमस्कार. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Good morning, respected parents, teachers, Good morning, sir. and beloved Good morning, students. sir. Good Good morning, morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Once again, good morning to all of you. Good morning to all of you. Now, you see that during this pandemic COVID-19, where the world, people are suffering in a different way. The teaching learning has not been possible in face-to-face manner. Children are not coming to the Vidyalaya, especially the students of classes 1 to 8. But in Kendriya Vidyalaya Sangathan, we are making every possible effort to compensate the loss of learning of the students. We are having very flexible timetable for the students. As I could hear the opinion of some of the parents that they were asking for morning classes. For primary section, we were having timetable in the morning during the summer session. Due to winter, we thought that it will be more convenient for the small students to attend the class. So in the morning session, we kept for secondary section, and for primary, we started later. But overall, we are having very flexible timetable. Sometimes we organize the PTM and other co-curricular activities, even beyond the routine timetable. So, though we cannot compare the benefits of face-to-face teaching and online teaching, but under the overall guidance of KVS Higher Authority, we are making all efforts to compensate the learning losses of the students. Besides the routine timetable, we are also conducting several programs, like we are publishing quarterly newsletter and very beautiful e-magazine we could publish with the help of the students. The students, while sitting at home, they were doing very creative and constructive work. They contributed a lot of materials for the publication of newsletter as well as e-magazine, and thus a beautiful magazine could have been published, and it could have been forwarded to all the parents and students, so they could see the beautiful pictures of their schools, classrooms, gardens, and all other aspects of the Vidyalaya. Besides that, our teachers are also taking pain to make virtual tour to the Vidyalaya. So sometime they can see the beautiful garden, their playgrounds, and laboratories, adult tinkering lab, computer labs, resource rooms. So in this way, though they are physically away from the Vidyalaya, but we teachers tried our level best to make them feel present in the Vidyalaya. Dear students and parents, even during this pandemic, we teachers were making all effort
to make this Vidyalaya a beautiful place of learning. I feel proud to share with you that this Vidyalaya is the most beautiful Vidyalaya in Bongaigaon district. Some of you are coming to the Vidyalaya sometime to receive the notebooks, to submit the notebooks for correction, and for some other official works. You could have seen the beautiful garden which we have developed here during this pandemic, because we were having a lot of time besides online teaching learning. And then every corner of the Vidyalaya has been painted afresh. So our Vidyalaya looks very beautiful. And you know, we are very much excited to welcome even the students of classes 1 to 8, because now the students of classes 9th and 12th have been permitted to attend the offline classes. So we are very excited that once we get the green signal, the noble note from the KVS Higher Authority, we will welcome you also. Especially we are very excited to welcome the tiniest students, the class 1 students of our Vidyalaya. And you know, every situation brings, you know, new opportunities for us. We should not be pessimistic all the time. Even during the COVID-19 pandemic, we teachers, parents, and students could learn many untouched part of education, which we were not practicing earlier during the offline teaching. We teachers learned a lot of technical know-how, how to handle the online classes. Even the students of class 1 could learn how to operate the mobile and laptop, desktop, how to join the classes. So many, you know, the technical aspects, all the stakeholders, teachers, students, and parents learned during this pandemic. Besides that, we should not be pessimistic and should think that life itself is a long journey. The hiccups, the disturbances may come on the way, but we should always remember the words of famous American poet Robert Frost, that woods are lovely, dark and deep. Woods are lovely, dark and deep. What we have promises to keep, and miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. So we term life as a long journey. We should learn in every situation. We should look forward, and we are very much prepared to welcome you, students of class 1s, when the situation becomes normal and we get the noble note from the KVS Higher Authority. You all will come to the Vidyalaya, and in this beautiful Vidyalaya, you will learn a lot of things. With this hope, I extend my sincere thanks for joining this online interactive session to students, respected parents, and all the teachers who have taken pain to make this session a possible one, a beautiful one, a real one. Thank you to all of you. Thank you, sir. Thanks, sir, for sharing your own classes. Now, I would like to thank all the parents, teachers, vice principal, sir, principal, sir, and as well as students to make this interactive session successful and giving your valuable suggestion. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.